हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा बच्चों को। और हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर चुके हैं, सॉरी हम चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन बताओ हमारे चैप्टर में। देखते हैं हम। ये पार्ट है द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। हमें जो मेन स्टेप है वो हमें लिखने हैं। ठीक है। पहला स्टेप होता है हमारा इंजेक्शन, खाने को लेना। ठीक है। फूड के लेने को हम कहते हैं इंजेक्शन। डाइजेशन, जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा है उसमें कहते हैं डाइजेशन। ऑब्जॉर्वेशन मतलब जो फूड का न्यूट्रिशन है सब ऑब्जॉर्व हो रहा है हमारे सेल में, हम उसमें कहते हैं एब्जॉर्बेशन। जो एस्टिमुलेशन है, फूड जो है निकल रहा है उसमें कहेंगे एस्टिमुलेशन। एडिशन, हमारा फूड निकल चुका है उसमें कहेंगे एडिशन। ठीक है। ओके। दस सॉरी, हमारा बी पार्ट है हम। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है ह्यूमन बॉडी का, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में। दैट इज अ लिवर। ओके, लिवर इज सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। ठीक है। एंड सी पार्ट इज द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश juices which act on food. Which juice act on food? We know that about that digestive juice always act on food. Okay. Then we come on part D. The inner wall of a small intestine has many finger-like outgrowths called. What is the outgrowth called? It's called villi. या फिर villi. Okay, it's called villi or villi. Okay. E. Amina. Sorry. Amoeba digests its food in food dash, in which think amoeba digests food itself. It's called food vacuole. Okay. The food vacuole you also read in class 8 in higher class. Okay. In clarity. Okay. Let's see our second question. Mark true if statements are true and true statements are false. Okay. We just do true and false. Okay. Our part A is digestion of starts in stomach. Digestion of start in stomach. False is absolutely false. Okay. The tongue helps to mixing food with saliva. It's absolutely true. Okay, it's true. Third, the gallbladder temporarily store bile. True. The ruminants bring back swallowed grass into the mouth and chew for some time. We already read that in the chapter that the ruminants bring back swallow grass into their mouths and chew for some time. Okay, so this is true. Then tick as. Oh, okay, sorry. Tick A as mark the correct answer each of the following. Fat is compulsory digested in the fat is completely digested in the फैट हमारा कहाँ डाइजेस्टेड होता है? ओके, तो फिर फैट हमारा डाइजेस्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, this is very important question. This question are also coming in my exam. Okay, think my exam. Okay. B part, water from undigested food is absorbed mainly in which part the undigested food are come in large intestine. Okay. Hmm. Match the items. We just match these items. Okay. So this is answer and this is question. Okay. Column 1, food components and product of digestion. Okay. Carbohydrate. Carbohydrate means sugar. Carbohydrate mean it's found in sugar. Okay. Protein found in amino acids. Fats found in fatty acids. Okay. So let's read about villi and what is the located and function. Let us read about that. What is villi and its function and where it is located. Okay, villi are the tiny fingers like protection. Okay, villi are the tiny finger like projections organization from the walls of a small intestine. They increase the surface area absorption of a digested food. Listen, my thing. Listen. The food.
if we can food the villi increase the surface area of observation. It means that increase the observation increase surface area of small intestine because ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के लिए वो हमारा सर्फेस एरिया बढ़ाता है। वो करता क्या है, अब देखिए ड्राई है ना, तो खाना जाता है यहाँ, तो वो सर्फेस एरिया बढ़ाया जाता है ताकि फूड फटाफट ट्रैवल हो सके, ठीक है। अब ये प्रेजेंट का होता है, ये हमारा प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इनसाइड द विलाई एंड अब्सॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द डाइजेशन। अब देखिए विलाई के अंदर ना ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, खाना सारा ले लेते हैं। देन ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, अपना जितना भी खाना है सब वो दूसरे खून को पास आउट कर देते हैं, ओके। Then my third question is sixth. Where is the bile produced? Where is the bile produced? We just read about that bile is produced in liver. Liver secretes the bile juice is stored in the gallbladder. ठीक है? Okay. Which component of food does help to digestion? Bile plays an important role to the digestion of food. Okay. This is the answer of this question. This is answer. Okay. This is the answer of this question. Okay. Then seventh question. Oh, sorry. Okay. Hmm. Name the type of carbohydrate that can be digested by humans, not by humans. Give region also. अब देखिए सेल्यूलोज एक ऐसा एकमात्र कार्बोहाइड्रेट है जो रूमिनेंट से डाइजेस्टेड हो पाएगा और ह्यूमन से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि रूमिनेंट सेल्स क्या होता है, एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक, ओके, सैक मतलब बोरी टाइप का स्ट्रक्चर होता है और बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, उनकी बिटवीन इनके आसपास होता है, ठीक है। where the food containing cellulose in the digest the action of certain bacteria. On the another hand, human cannot digest cellulose and the cellulose digested by enzymes and absent in them, ठीक है। एंजाइम प्रेजेंट्स, एंजाइम हमारे एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। ओके। our eighth question is why do we get instant energy from glucose? Because glucose is simpler form of because glucose is a simple sugar. Because glucose is simple sugar. Carbohydrates, when we consume, have passed into glucose. Our glucose can be easily absorbed in the blood. This provide the energy to the blood. ये जो शुगर है ना हमारी ब्लड को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ओके। Hence, when glucose is directly taken in, it does not have to digest it. Just acts on the this, ठीक है, मतलब डाइजेस्ट करने में काम आता है, ठीक है। Which part of digestive canal is involved in the ऑब्जर्वेशन वाली कौन सी कैनल इन्वॉल्व होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। च्यूइंग हमारा कौन करता है, मतलब खाना चबाता होगा ना, बकल कैविटी। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कहाँ होता है? स्टमक में होता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फॉर्मेशन ऑफ फेसिस कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ओके। देन रीड 10th क्वेश्चन। Write one similarities and one difference between a nutrition in amoeba and human beings, ठीक है। Similarities, nutrition and amoeba beings are both amoeba and humans, both amoeba require energy to growth and maintain their body. अब जाहिर सी बात है कि दोनों को तो एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए खाना चाहिए। These energy is derived from the food that they eat. ये एनर्जी कहाँ से, जब वो खाना खाते हैं। The food that they contain consume always in the complex form and they are broken into simpler substance. अब process of digestion, अब कुछ भी हम खाते हैं वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है, उसे हम तोड़ तोड़ के हम सब करते हैं सिंपल सब्सटेंस में, इसी को हम कहते हैं डाइजेशन। हेंस बोथ दिस ऑर्गेनाइजेशन आर द हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, हाँ। हेट्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो हम खुद से खाना आते हैं, ठीक है। ह्यूमन एक हेट्रोट्रॉप्स है, ठीक है, और अमीबा भी एक हेट्रोट्रॉप्स है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है इनका? डाइजेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमन हैव अ माउथ एंड कॉम्प्लेक्स absent in amoeba, okay. And second point about digestive juice and secrete in the buccal system, buccal in the buccal stomach and small intestine, okay. Third point हमारा digestion of carbohydrate, proteins and fats separates the regions digestion in the food vacuole, okay. डाइजेशन अमीबा देखते हैं। माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर
mouth and digestive system are digestive system. Third, second point, digestive juices are secreted in cavity. सॉरी यहाँ पे ना ये पूरा टेबल ना मिस से हो रखा है, तो ये टेबल सॉरी आप गूगल से देख लेना, सॉरी अबाउट दैट, सो सॉरी। ओके, 11th क्वेश्चन, लेबल द फॉलोइंग द फिगर्स, हमें सब फिगर को लेबल करना है। इट्स टू मच इजी, ठीक है। ये जो सैक लाइक सब हम कहते हैं, स्टमक जो ये थोड़ा लटक रहा है, थोड़ा हम कहेंगे गॉल ब्लैडर, जो थोड़ा ये अजीब सा है, डंडे टाइप का, हम कहेंगे पैंक्रियाज, जो थोड़ा सांप टाइप सा है, ये सब कहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, जो को हलवे की तरह बन रखा है, सब कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हल्का सा यहाँ पे उसमें कहेंगे रेक्टम, जो हल्का सा यहाँ पे सब कहेंगे एनस। ओके, अब कैन वी सर्वाइव ओनली अ रॉ लीफ वेजिटेबल्स ग्रास डिस्कस, अब क्या ह्यूमन सर्वाइव कर पाएंगे सिर्फ घास फूस पे? नहीं, ह्यूमंस कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज द ग्रास इज सेलुलोज, और ग्रास में सेलुलोज होता है, और जब ग्लास दिस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ह्यूमन डज नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट, अब सेलुलोज ना कभी भी ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए हम घास फूस खाए खा के रह नहीं सकते, ठीक है। सो हमारा वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ऑब्वियसली ज़्यादा लाइक करेंगे, मुझे समझ आता है कि लोग क्या कहते हैं, लाइक करना ऑब्वियस सी बात है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करोगे आप, और चैनल अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करोगे, ऑब्वियस सी बात है यार। मैं इसका अपने चैनल पर इंट्रो लगाना था, तो आप प्लीज़ मेरा इंट्रो देखना चैनल का, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट है, हाँ ये डाउट का तो कोई बोलता है यार, लाइक करो सब्सक्राइब कर दो, कौन बोलता है फालतू का बकवास, मैं खुद बोला पसंद नहीं है। आपको कोई भी डाउट तक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, अगर कोई मेरे से गलती हुई है, कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो, सॉरी अबाउट दैट, या फिर कोई क्वेश्चन छूट गया तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन को, ठीक है। सो टिल देन, अभी के लिए बाय बाय, स्टे कनेक्टेड विद मी, ओके, थैंक यू, बाय बाय।